I've just started recording. So, as you all might know from the messages, today's session is based on AI, ML, deep learning, and research-based things. And we would explore it more also. Let me first introduce myself. I'm Sumit from fourth year, IT branch. I am currently an intern at DRDO, and I would be hosting the session with the two guests, Shubhankar and Kshitij. I previously worked in the same field of deep learning at IIT Kharagpur and in machine learning at IIIT Allahabad as an intern. I would be joined by Shubhankar. Shubhankar is currently an intern at NVIDIA, both for deep learning and as an teaching assistant, like in the courses of NVIDIA. Moreover, Shubhankar has also worked in IIT Jodhpur as an intern on the same field. Thank you, Shubhankar. Also, we would be joined by Kshitij Sinha. Kshitij is a passionate deep learning guy, and he's currently interning at University of California, Berkeley. Those are research internships, so we would get a chance to explore the research aspect of this as well, and we can go forward to the master side or those things, like in the research field more ahead. And also, Kshitij has also interned at IIIT Allahabad, so we would be joined by Kshitij also. Kshitij, are you there? Okay. Kshitij, you are inaudible. Yeah, I'm there. जिस बैच में क्षितिज तूने IIIT इलाहाबाद से इंटर्नशिप करी थी, लाइक मैंने उसे जस्ट एक बैच पहले करी थी, तो मे बी अगर हम साथ में करते तो मतलब इस सेशन में भी अपने को वही सेम एक्सपीरियंस बताना पड़ता, तो अपनी वो एक तरीके से कोहेसिव वे में हम नहीं बता पाते उसको. Moreover, we'll start with Kshitij first. So Kshitij, what in your view is like the field about ML, AI, DL, and what are its prospects according to you? Okay, so sorry about the camera. I think. Kshitij, your voice is very low. Hello. Hello. Is Kshitij audible to others? Just give me a minute. I'll just. शुभांकर, कंफर्म कर दे. नहीं भाई, आवाज बहुत कम आ रही है. तो ठीक है, जब तक क्षितिज मतलब अपना ठीक करेगा ईयरफोन वाला सीन, कैन यू इंट्रोड्यूस अस टू दिस फील्ड, ऑल द पीपल हु जॉइंड हियर. ओह ठीक है, क्षितिज आ गया. हाँ, ये क्षितिज स्टार्ट. अब आ रही है ठीक से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Okay, good. So hi everyone, my name is Kshitij, and as Sumit introduced, I've been working in MLAI for about 1.5 years, and I won't say I'm good at it. I'll say that I'm still practicing it, and I'm just going to share what I've done and how I perceive it, and people can have different perceptions about everything, so feel free to understand it on your own. And feel free to explore it on your own. ये जो फील्ड है ये अभी भी अपने इंसेप्शन स्टेजेस में है, तो इट विल टेक टाइम टू बिकम नॉर्मल. ठीक है, और अभी भी बहुत डिबेट है इसके ऊपर कि व्हाट इज एमएल, व्हाट इज डीप लर्निंग, व्हाट इज एआई. Yeah, so we can just have like a brief idea from Kshitij की मतलब exactly उसके perception से ये क्या चीज है. Right. So okay. So machine learning and deep learning and AI की जो field है, ठीक है, I'm just gonna take them all three at once. ठीक है, so basically we're trying to teach the machine on how to make judgments and how to give us results without our supervision, without explicitly defining each and every rule, so that the rule learning is done by the machine itself. So I think that's how I try to understand it, and this is a very brief version. This is just a one-liner. It's I can write paragraphs on it, but I don't think I have the time right now to explain all that. So yeah, and it is an ever-growing field. It is going to grow for another at least 20 to 30 years before being, before plateauing into something else. And different fields might come along, different things might interest you, and different researches might interest you. Like if I want to start off with a good example, then I would like to tell you about the AlphaFold research. Okay, so there's this DeepMind. So
what happens is every year there's a competition on a certain problem, and companies, teams around the world compete in that to create a very good model, so that that can be used commercially, or some kind of a product that can be made out of it, and some problem that can be solved. So there was this problem of DNA sequencing. So DNA, we didn't know how the sequences of DNA are designed in our bodies. So that was a problem that has been there for 50 years, and scientists haven't figured it out because it's different for everybody. There are 7 billion different DNAs on this planet. So uh, a AI model was designed to predict it, and that AI model was named AlphaFold to actually discuss actually it is a little more complex than just sequencing. You might look at it on its website. It's got a whole website just dedicated to this, and and this what it did is that it had such a great predicting rate and a great accuracy at predicting these sequences, that it was named as a perfect solution. It not a perfect, but it was named as a reasonable solution for this problem, and it was conventionally accepted by everyone that this is how everything is done, and DNA sequencing is done. And I think this is one of the things that blows my mind, that how humans could not solve a problem for 50 years, and we designed an AI that solved a problem that was there for 50 years, and now biology can move forward with it, and neurosciences can move forward. So I think that's pretty incredible. So yeah, right. That's fascinating. But as Shitij said that he is not like a pro in this field, so I would like to add a slide that this is a field that I believe that no one can be a pro at in eternity, then in crescent manner. If we go on and forth in this field, even then we cannot say that yes, our model will definitely work for in the first go. We have to go for some trials, etc. And That's what I meant, right? like we are trying, since this is a field of which involves such terminologies, we will try that this discussion doesn't become esoteric to us, and we involve all like sorts of people who are new to these terminologies, this machine learning, deep learning, etc., and they can understand it better. Shubhankar, can you differentiate like how Before people should differentiating it, think different from conventional programming? Because before differentiating it, the founder or the originator of Keras, which is a library built on for specifically for deep learning. The founder of it, who is from Google Brain, it is a team in Google Research. So he also shares very similar things, that he isn't even a pro at it. right. Now coming to like how it is different from conventional program. So in Sanskrit we say Ikshu Shir Kudadi Nam Madhurasya Antaram Mahat Tathapi Tadat Khyatum Na Saraswatyapi Shakyate. So it means कि गुड़, दूध, गन्ना तीनों मीठे हैं, बट इन तीनों की जो मिठास है उसे हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इवन अगर सरस्वती भी आ जाए तो वो भी इनको नहीं करते. सो जब भी हम कुछ डिफरेंशिएट करने जाते हैं एज ह्यूमंस या एज प्रोग्रामर्स, सो वी क्रिएट सम रूल्स, राइट? सो बट कुछ चीजें ऐसी हैं उनके लिए आप एक्सप्लिसिटली रूल्स नहीं बना सकते. कितने रूल्स बनाओगे? 1000, 2000, इससे ज्यादा नहीं बना पाओगे. लेकिन टू कवर दैट अप वी यूज मशीन लर्निंग. एक कन्वेंशनल एग्जांपल, एक बहुत पुराना एग्जांपल है, गूगल की एक प्लेलिस्ट है एमएल के ऊपर यूट्यूब पे, वहां से मैंने लिया है कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास सिर्फ गुआवाज और ऑरेंजेस हैं, एंड मैं अज्यूम करिए कि कस्टमर हूँ और मैंने उससे पूछा इनमें से ऑरेंजेस कौन से हैं या गुआवाज कौन से हैं, हाउ आई शुड डिफरेंशिएट इट. So the guy says that the ones with orange color are oranges and the one with green color are guavas. Then I pick. अब कुछ oranges ऐसे भी हो सकते हैं जो green color के हों, कुछ guavas ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्यादा ripe होने के कारण yellowish या oranges shade के हों. So ये यहाँ तो हमारा rule fail हो जाता है. So क्या करें? तो यहाँ पर हमारी machine learning काम आती है.
जो भी उस चीज के एस्पेक्ट हैं, चाहे उसकी शेप है, चाहे उसका साइज है, चाहे उसका कलर है, ये सारी चीजें हम यूज में लेके उसके लिए कुछ एक एल्गोरिदम बनाते हैं। अब मैं 1 मिनट अपनी स्क्रीन शेयर करके एक डायग्राम शो कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है, प्लीज प्रेजेंटर बनाना। 1 सेकेंड, बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। शुभांकर शर्मा, 1 सेकेंड रुक जाओ। शुभांकर शर्मा, हाँ प्रेजेंटर कर दिया। शुभांकर, प्रेजेंट का ऑप्शन आ गया। लेट्स वेट। सो बेसिकली क्या होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ना, हम लोग रूल्स और इनपुट वो हम देते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ आंसर्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आंसर्स भी हम दे रहे हैं, डेटा और इनपुट्स भी हम दे रहे हैं, और भी हम जो हमारा एल्गोरिदम है या हमारा जो मशीन है, हम उस पर छोड़ देते हैं कि यू डिसाइड द रूल्स, एंड व्हाट वी नीड इज एट द एंड हमारे पास रूल्स आ जाए, ताकि यही रूल्स यूज करके हम फ्यूचर में कुछ डेटा दें और उसके बाद हमारे पास आंसर आए। तो बेसिकली ये बिल्कुल चीज है। बिल्कुल। ओके, सो और हाँ, yeah, you would like to add anything? नथिंग, Would you? Okay. दैट्स द इजीएस्ट वे So ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। let's move forward in this discussion with Kshitij. Since this is a field कि हम मतलब इसको यहाँ पे एज अ सेशन करके एक तरीके से पढ़ा नहीं सकते, पर हम इसका रोड मैप एक बना सकते हैं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ें। तो क्षितिज, मैं कुछ चीजों पे यहाँ लाइट डालूंगा कि जो प्रोजेक्ट्स तुमने टेकअप किए वो कैसे थे, या एमएल या डीएल की जो सोसाइटी पे इफेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, और तुम्हारी जर्नी और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लाइक इन वन गो। अगर हम इन सब क्वेश्चंस को कवर कर सकें तो मैं इन सबको एक साथ ही रखना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट्स की क्या वैल्यू है, इसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है, और तुम्हारी जर्नी और इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस इसमें कैसे रहे। ओके सो मैं प्रोजेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो प्रोजेक्ट्स बनाते समय मतलब मैंने ये गलतियाँ करी हैं कि लाइक कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें दिखेगी, ठीक है, तुम बहुत अट्रैक्ट हो गए उसके तरफ, बट तुम्हें उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, तुम्हें देखना है कि एक्चुअली तुम उसमें काम कितना डाल रहे हो। एंड if you look at any problem, it is going to be it is going to sound easy at first, but then when you try to do it, there are thousands other people that are doing the same thing, and you have to do better than them. And when it comes to projects, doing projects on your own, you have to take up projects that are nice for you, that are going to shine on your resume or any kind of on your Google Scholarly page or anything. So you're gonna have to take up projects like that. ऐसा नहीं करना है कि लाइक कोई भी प्रोजेक्ट उठाया कि एक बस डिसीजन ट्री ट्रेन कर दिया, ठीक है, एक एंसेम्बल मॉडल ट्रेन कर दिया, एंड बस उतने पे तुमने खत्म कर दिया, एंड यू से कि भाई मेरी प्रेडिक्शन आ गई। यू हैव टू लुक इन, एंड मेरे हिसाब से यू आर वर्किंग विद डेटा, ठीक है। सो 50% काम किसी भी एमएल उसमें इज डेटा। You have to work on the data, and you have to understand the data, and if you do that, your 50% work is done if you understand the data. Then after that, how interviewers and people that people from different companies, professors and all, how do they differentiate good guys from bad guys, from fakers from actual hard workers? So इसमें फेक करना एक्चुअली बहुत आसान है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन जो लोग इस फील्ड में पहले से हैं उनके लिए फेकर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर तुम तीन बेकार से तुमने कोई प्रोजेक्ट करे, लेकिन तुमने अपने रेज्यूमे में उसको बहुत बड़ा चढ़ा के लिखा, ठीक है,
कि मैंने ये सब चलाया, मैंने इतना सब किया, मैंने PyTorch में बनाया, आई लाइक समथिंग लाइक दैट, मेरी इतनी एक्यूरेसी आई, दिस वाज एंड आई एम लुकिंग टुवर्ड्स पब्लिकेशन, जो भी, ठीक है, दिस may sound good, but when the professor asks you the questions about it, the way you're articulate about the problem gives it away how good are you're at the, you know, the basics of it. So you need to have the basics in order to qualify any kind of an interview. They'll ask you each and every class. You cannot pick up from GitHub. If you're picking up code sections from GitHub, please make sure that you understand that code section first before pasting it in your Jupyter notebook. And if you're trying to, you know, do some debugging or anything, just don't pick up lines from Stack Overflow and put it in your code, because sometimes it happens that you're doing something that is, you're putting a line that is compatible with some other form, and then and then at some level your code might work, but then in a larger perspective, you're with a different data, your code might not work and it's completely unusable. So you got to take care of it, and you got to make sure that you can impress people with the skills that you have, but you need to know the basics. You need to know what you are doing. You need to be in control, not, you know, you don't have to go with the flow. You need to be in control with what's flowing. And what was the third thing? I'm forgetting one more thing, I guess. ओके सो ये था कि मतलब तुमने इंटरव्यूज को कैसे अप्रोच किया, या मतलब उनमें क्या क्या होता है एक्चुअली इन चीजों के इंटरव्यूज में, या रिज्यूम्स पे क्या देखा जाता है मोस्टली, एंड रिसर्च जो होती है इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसमें आगे क्या होता है, इन सब प्रोस्पेक्ट्स को हम देख रहे थे. ओके सो हाँ, तो ओके, इंटरव्यूज का मैं अगर बताऊँ पहले, तो अगर कोई भी कंपनी का इंटरव्यू दोगे, ठीक है, they'll take multiple rounds from you, ठीक है, they'll give you a problem to solve, they'll give you problem कि इसका मॉडल बनाओ, and give us some results, give us a clean neat model, and they'll require some sort of you know, a template that they'll give कि इस form में हमें चाहिए, and everything. It's going to be, you know, a bit of hard work and in very less time. But when it comes to research and all, you have time to think about everything. You have time to study. You're going to have to go through multiple different papers and make sure that your study hasn't yet been done. And this is one of the key points, that if you're in research, it's going to get boring. It's definitely going to get boring. And I'm just going to say that if you're coming into research, you're going to have to study. You're going to have to read a lot. You're not going to get to code a lot, but you're going to have to read a lot. Blogs, papers, and whatnot. But if you're working in an MNC or some kind of a company or some kind of a startup, they're going to give you a lot to code. They're going to give you a lot to understand. They're just going to give you key, okay, so this is how it should be done. You just need to function out of, you just need to provide them with some kind of function to handle some case, or, you know, they'll say ki, okay, add some kind of an exception handling in this, or something. They'll not tell you to write the whole code when you get into an internship, but when you're interviewing for it, it's harder to interview for an MNC, because they're going to grill you in the interview. A professor in a research is not going to grill you in the interview, but he's going to see right through you. He's going to ask 2 questions and he's going to see right through you. He's going to say we'll talk, and then he's going to ghost you, because he does not have the time to entertain you, because 100 people like you approach him every day for the same research problem, and he's like, I got a pick. So you can't do anything about it. And if you're getting into research, I must say that you have to be focused. You have to, you know, you can't take breaks is all. Even on a Sunday, you can't say, okay, that today is a Sunday. You can definitely take a break, like, okay, today I'm not going to work. I'm just going to chill, watch Netflix, watch Office or shit. But I'm just going to say that when you're in a research thing, if there's a deadline, you're going to have to work your ass off, and you're going to have to work
24, like maybe 18 hours a day to complete a paper submission, or maybe there's some kind of a data set that you're publishing, or maybe some kind of let's say some kind of code that you have to complete, and some kind of review that you have to submit. So you're gonna have to do that by the deadlines, and I think that's a little that's a little bit easier in a company compared to a research, that deadlines are flexible in a company but not in research. Like I must say, you articulated it very well in a very cohesive manner. बट मैं एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब तूने बात पॉइंट आउट करी है कि रिसर्च पेपर्स की जो स्टडी होती है उसका बहुत वो होता है, तो मैं बिल्कुल इस बात को आज तो फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट पे मैं हूँ अभी डीआरडीओ में, जिस साइंटिस्ट के साथ, उन्होंने मतलब एक तरीके से वो कोड पहले से लिखा हुआ है, वो उस पर ऑलरेडी पेपर पब्लिश हो चुका है, बट उन्हें उसमें कुछ नया करना है और उस पर काम चल रहा है, और उन्होंने आज बिल्कुल एंटायरली ट्रैक बदल दिया उस चीज का, और आज हमें 2-3 पेपर एक्स्ट्रा दे पढ़ने के लिए, और उनमें से एक पेपर 40 पेजेस का है, और उसको उन्होंने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है, मतलब 2-4 दिन में वो दोनों तीनों पेपर स्टडी करके उस पर हमें बताना है, और 1-2 पेज की 40 पेजेस प्लस 2 और पेपर हैं, और उनकी 1-2 पेज की रिपोर्ट बतानी शॉर्ट में कि इसमें ये था, और उसके बाद उस पर आगे काम बढ़ेगा। तो मतलब ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इसको मैं सफर कर रहा हूँ साथ में। Exactly. तो बट सफर क्या, मतलब अगर वो चीज हम कवर नहीं करेंगे तो उसमें आगे भी नहीं बढ़ सकते उस प्रोजेक्ट में। तो बहुत डिफरेंस है, amount of hard the amount of work that you're going to do on both sides might be the same in a long run, but there is going to be a different dynamic to each and every field that you're indulging in. Definitely, yeah, surely. So I would come to Shubhankar now, because your field has also been research based for long, and I think you, Shubhankar, Excel Pat Lab वाला जो काम था वो तूने मतलब पूरा किया था, बीच में छोड़ दिया था? चल रहा है। अच्छा, वो चल रहा है अभी? ओके, गुड, फाइन। सो तूने अप्रोच जो किया कंपनीज को, क्योंकि जैसे मैं हूं तो मेरा मोस्टली जो डीआरडीओ है वो भी एक तरीके से प्योरली उसको एकेडमिक ही बोलेंगे। क्षितिज के भी काफी सारे जो एक्सपीरियंस है वो एकेडमिक हैं, बट आईआईटी जोधपुर वाले एक्सपीरियंस के बाद तू बहुत जल्दी इन पे जो तूने स्विच किया इंडस्ट्रियल वाले में, उसके बारे में मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि इनको अप्रोच कैसे करना होता है, इनमें क्या किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज कई बार ये परसेप्शन होता है that if someone is from the undergraduate field, he or she might not be preferred in this field in AI or ML or DL, because these are like extensive research fields, and you need a lot of experience, especially academic, to go to the industrial level in this. So अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें तूने अप्रोच किया और हुआ है, तो इसके बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। ओके, सो यार बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या कंपनी में जाने के। जो सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो ये होता है कि उनके जॉब बोर्ड पे चले जाएं, या लिंक्डइन के का जो जॉब बोर्ड होता है उस पर चले जाएं, कुछ क्वेरी डाल दें, और उसके बाद वहाँ अगर कुछ रेलेवेंट मिलता है तो उसमें अप्लाई कर दें। ऐसी मैंने 700 से 800 एप्लीकेशंस भरी हैं। इसके अलावा लेकिन क्या होता है कि ये जरूरी नहीं उतना फ्रूटफुल हो। अब एक कोई स्टार्टअप है, उसका नाम है एंटरप्रेट, एक उबर के लोगों ने उसको स्टार्ट किया था, और उसमें एक पोजीशन निकली थी डेटा साइंस एमएल इंजीनियर इंटर्न के लिए। उस पर 3000 एप्लीकेशंस थी। ठीक है, तो कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट, दे आर लुकिंग फॉर द लीस्ट फीजिबल। ठीक है, कि लेट से उन्होंने पहली 500,000 कुछ एन एप्लीकेशंस हैं वो जस्ट शॉर्टलिस्ट करी बिना रिज्यूमे देखे। उसके बाद उनके रिज्यूमे देखने शॉर्टलिस्ट करने शुरू करे, और एक काइंड ऑफ उनका हर कंपनी का अपना एक एम्पायरिकल फॉर्मूला होता है कि ठीक है, पहले इतने लोग कट ऑफ करेंगे, इतने लोगों के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे, इतने लोगों को टेस्ट या टेक होम असाइनमेंट देंगे, उसके बाद इतने लोगों का इंटरव्यू होगा, पहला राउंड, दूसरा राउंड या जैसा भी रहता है, और फिर फाइनली हमें इतनी वैकेंसीज है, इसके लिए हमें रिक्रूट करना है। तो यही है कि अगर आप वो पहले ही 1000 लोगों में नहीं हो तो आपके लिए वो बहुत। दूसरा क्या है कि अब इससे ओवरकम कैसे किया जाए। इसमें 2 तरीके हैं। जैसे मुझे कोई कंपनी अच्छी लगी, लेट से मुझे स्विगी अच्छी लगी, या आजकल कुछ नई कंपनीज है फैमपे वगैरह, वो अच्छी लगी, तो मैं क्या करूंगा, लिंक्डइन पे जाऊंगा,
उनके जो भी मेंबर्स हैं, स्पेशली SDE या डेटा साइंटिस्ट या AI इंजीनियर्स, ML इंजीनियर्स, इनके पास नहीं, उनके टैलेंट रिक्रूटर्स, HRs और टैलेंट एक्विजिशन वाले लोग जो है उनके पास जाओ। उनको कहूंगा यार आपके पास कोई भी अगर इंटरनल रोल भी है, मतलब हो सकता है कि कंपनी ने वेबसाइट पर नहीं डाला हो, उन्होंने अपने इंटरनल जॉब डेटाबेस पे उसको डाला हो और अपने एम्प्लॉइज को कहा हो यार आप लोग अपने हिसाब से देखो, बिल्कुल। ठीक है। तो उन लोगों को अप्रोच करो। तो उससे क्या होता है कि रिलेटिवली यहाँ पर जो लोग होते हैं ये बहुत कम, बेटर है इनको अप्रोच करो। दूसरा तरीका क्या है कि लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन के जॉब बोर्ड पे नहीं जाना है, लिंक्डइन का जो नॉर्मल सर्च बार है उस पे जाओ, उस पे जाके एक सेकंड में दिखा देता हूँ, मैंने खोला। अगर कॉम्प्रिहेंड करें तूने इस पूरे अब तक के वक्तव्य में लिंक्डइन शब्द कितनी बार प्रयोग में लेकर आया तू लिंक्डइन शब्द को, तो ऐसा लगेगा जैसे लिंक्डइन पे ही ये पूरा वो चल रहा है आज का सेशन। तो पता चलता है कि लिंक्डइन की बहुत बड़ी वैल्यू है यहाँ पे। बहुत बड़ी वैल्यू कैसे है। एचआरस लोग को बता कांटेक्ट देते करना हैं, है इस काम के लिए, या टैलेंट हायरिंग वालों को। लोग बता देते हैं कि यार यहाँ चले जाओ, ये कर लो, उससे पूछ लो, ऐसे कर लो, लेकिन एग्जैक्ट तरीका नहीं बताते। और जब आप बिगिनर होते हैं या फ्रेशर होते हैं तब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमें एग्जैक्ट तरीका नहीं। बहुत सिंपल है, ये 3 शब्द डाल लो, या फिर ये वाला शब्द चेंज कर सकते हो, कोई और रोल देख रहे हो वो डाल लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट तूने देखने ऊपर सर्च किया फ्रंट एंड इंटर्न हायरिंग, राइट? फ्रंट यस, एंड इंटर्न हायरिंग, फ्रंट एंड बिल्कुल, इंटर्न। बस सर्च किया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारे लाइक, क्योंकि क्या होता है ना कि कोई कहता है यार मुझे ये जॉब मिल गई, ठीक है, तो वो भी पोस्ट कर, तो कई बार वो भी आ जाता है। तो हमने जैसे एक ये है, कोई क्विन है, कोई स्टार्टअप है, उसके एक बंदे ने डाला है, और मतलब अभी कोई फ्रंट एंड वाला हो तो वो देख भी लेना इसे, ठीक है। तो इन्होंने डाला, अब या तो इन्हें DM कर सकते हो, कोशिश करना कि इस पोस्ट को कभी लाइक मत करना, क्योंकि इसकी रीच बढ़ जाएगी और कंपटीशन, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा ये है, इनको हमेशा काइंड जाके ऑफ लीसिंग, बट चलो सही है। काइंड ऑफ व्हाट, काफी चालू करने की बात है, पर चलो ठीक है। ऐसा कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अपनी तरफ से जितना कर सकते हो उतना करो। दूसरा हमेशा हम्म। ये करना है कि इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, साथ में एक नोट ऐड करो कि हाय मैं ये बंदा हूँ, लेट से मैं जो लिखता हूँ इट इज जो भी अच्छा, एक चीज और है, बहुत लोग क्या करते हैं, डियर सर स्लैश मैडम, ये चीज मत करना, हमेशा जस्ट इंसान का फर्स्ट नेम यूज कर, ठीक है। तो डियर अरविंद या हाय अरविंद, होप यू आर डूइंग गुड, आई एम लुकिंग फॉर सच 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 होप रोल। अरविंद सीज दिस सेशन। यस, होप्स उसकी अरविंद सीज प्रोफाइल दिस पे एक सेशन। ट्रायल ट्रायल रन करके दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर हाँ, सच 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 रोल्स, इफ यू हैव एनी रोल्स, ठीक है, सुटेबल रोल्स, देन लेट मी नो, ठीक है। और ये हिट एंड ट्रायल के बाद आता है। इवन अगर मैं जो डम और एप्लीकेशन ऐसे होती है, 700-800 एप्लीकेशन तूने भेजे लोगों को कनेक्ट कर करके। 700-800 एप्लीकेशंस तो वो थे जो कि मैंने जॉब बोर्ड्स के थ्रू भेजा था, जो कॉमन उनकी जॉब पोस्टिंग आती है। तो इसे कॉमन नोशन तो ब्रेक कर सकते हैं कि मतलब अगर 10 जगह अप्लाई किया और कहीं से कॉल नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये कि चांस बहुत कम रहता है, तो पॉजिटिव रह के लगातार लगे रहना चाहिए उस चीज में। यू शुड हाउंड बिहाइंड इट एंड एक यू शुड बी। हाँ, एक यूट्यूब पे बिल्कुल चैनल है बिल्कुल। सिंग इन USA, उसमें बंदा है हरनूर से, हाँ बिल्कुल, सिंह इन यूएसए, ठीक है, हरनूर का है, बहुत पॉपुलर चैनल है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पास आउट है, M.Tech भी कर लिया है। उसने ये कहा था कि आप हाँ। 1000 एप्लीकेशन भेजते हो ना, तो कहीं जाके हम्म 20 या 30 इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, और एट द एंड 2 या 3 ऑफर आपके हम्म। हैंड में होते हैं, ठीक है। तो लोग तो क्या वो करते हैं, जॉर्जिया फर्स्ट स्टेट जाके का पास आउट है, आई थिंक। जॉर्जिया नहीं, जॉर्जिया टेक का नहीं, वो स्टेट का ही है। हाँ बिल्कुल राइट, स्टेट हाँ का, कंटिन्यू। तो हम्म। लोग ये ना 50-100 इतनी एप्लीकेशन भेज के बैठ जाते हैं, ठीक है, अब तो सामने से आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम्म। आपकी तरह और भी लोग हैं। और एक यार इसका एक और बोला था किसी ने, लेट से अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ 1000 लोग एप्लीकेशन भर रहे हैं, तो आपको 1000 जगहों पर एप्लीकेशन भरनी है टू गेट वन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 1000 लोग भर ही रहे, इसका मतलब 1000 एप्लीकेंट है। अगर हर बंदा कहीं ना कहीं जाने ही वाला है, तो इसका मतलब तुम्हें भी, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 1000 में से एक हो जाती है ना। 1000 जगह बिल्कुल, अप्लाई करोगे तो एक आएगा। बट ये द है कि वो वर्ल्ड इज तो बिल्ट ऑन चांस की बात स्मॉल। है, किसी ने 10 में किया उसका आ जाएगा उसमें से एक में, वो चांस की हाँ, बात है। और एक चीज हम्म। और है कि बहुत क्या होता है कि कई बार कोई अपॉर्चुनिटी होती है वो लोग मिस कर देते, सो हाउ
मतलब कैसे पता लगाएं ये चीज पंकज ने पहले सेशन में भी बोली थी। तो जस्ट एक चीज है कि शुभांकर ये वाला जो डिस्कशन है हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं क्षितिज के साथ क्योंकि एक सेकंड 40 हो गए हैं, वो 6 बजे जाएगा, तो इसलिए एक बार उसके साथ ये डिस्कस कर लें। बिकॉज जो हाँ बोल। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि मेरे लगभग 1100 कनेक्शंस हैं, ठीक है। तो ये कभी भी कुछ भी लाइक करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। लिंक्डइन कनेक्शंस की काफी वैल्यू है, मतलब बहुत वैल्यू, एटलीस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग प्रोफाइल भी नहीं बनाते हैं, तो वो होना चाहिए। मतलब लोग सोचते हैं यार मैं तो अभी जॉब देख ही नहीं रहा हूँ, तो मैं क्यों प्रोफाइल बनाऊं, मेरी तो इतनी अच्छी प्रोफाइल है ही नहीं, मैं क्यों लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाऊं, मुझे कौन पूछेगा। मतलब एक दिन में तो 1100 कनेक्शन नहीं बनेंगे, धीरे धीरे बनाने पड़ेंगे, वही वाली बात है। और ये 1100 कनेक्शन के पीछे और लिंक्डइन पे लोगों को मतलब अप्रोच करते हैं, मैं अपनी जो स्टोरी है बाद में बताऊंगा। मैं 2 बार सस्पेंड हुआ हूं लिंक्डइन से। बढ़िया है, होना चाहिए था, ऐसे लोगों को स्पैम करता रहता है। खैर, लेट्स स्टार्ट विद Kshitij on this topic ki how do we approach for research opportunities with professors at different like academic university and especially the foreign university thing, क्योंकि ये बहुत फैंटेसी टाइप का लगता है हम लोगों को कि मतलब फॉरेन में रिसर्च इंटर्नशिप हो जाना। बिकॉज जिन लोगों को एक्चुअली नहीं आइडिया लगता पहले से कि डायरेक्ट मेलिंग क्या होती है या ऐसी चीजें क्या होती हैं, उनको लगता है फॉरेन इंटर्नशिप मतलब लाइक ब्रेक थ्रू टाइप। एक्चुअली है भी ब्रेक थ्रू, बट उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत फार रीच की चीज है, और वो मायोपिक होते हैं सेंस में कि वो उसको अप्रोच ही नहीं करने की कोशिश करते। तो इन सब चीजों को एक बार क्षितिज अगर कवर करे कि रिसर्च अपॉर्चुनिटी जो होती है प्रोफेसर्स के साथ, वो क्या होती है, माइटेक्स, एनटीओ, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, इन सारी चीजों पे एक बार हम बात कर लें तो। हाँ क्षितिज। हाँ बिल्कुल। सो या तो मैं अगर स्टार्ट करूं कि कैसे, मतलब देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, basically two ways that you can apply in a research intern, ठीक है। सो पहला है यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ कि कोई प्रोग्राम है जो कि किसी यूनिवर्सिटी ने निकाला है, ठीक है। किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी निकालते हैं प्रोग्राम्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी निकालती हैं प्रोग्राम्स। सो इफ़ यू गो थ्रू दीज प्रोग्राम्स, तो इस प्रोग्राम से पहले ही कुछ प्रोफेसर्स जुड़े होते हैं। You just need to apply in the programs, they'll designate you to a professor, and whatever the professor is working on, whichever professor chooses you, based on that you're going to working on some kind of a problem with them, hoping for some kind of research. Now research may there can be multiple different researches, like you start multiple different phases that you can be in a research. In such programs you generally, you know, they give you a project or they ask you ki okay, study about this, study about say federated learning, study about brain computer interface systems, ठीक है। They'll give you some kind of references to begin with, and then they'll ask you ki okay, so give us a research problem. If you have something in mind, they'll give you time to research about it, that what kind of a problem has not yet been tackled in this field. And then if you can't come up with, they'll definitely help you out. They're very helpful people. You're just gonna have to be vocal about it, and they're gonna give you a research problem. You're gonna work on it, and there's gonna be a specific time. There's gonna be like 2 months, 3 months, or a month, or whatever that you're working on. And the other kind could be that there's one research problem that has been going, you pick up on that research problem, somebody has already worked on it, you pick up on it where it was left off, you study what was done pehle, and then you continue it you know, in a better direction from there. And if the professor likes you, he'll probably ask you to, if you're being excellent, he'll probably ask you to stick around for more than what you were you know, what you were supposed to be there. Like if you were supposed to be there for 2 months, the professor is going to ask you, okay, how about we work for 1 month and just finish this off, because he's going to have to train a whole another person, and another 2 months is going to go waste. So it's also his profit and your profit, and you might become, like, from acknowledgements you might come into the authors of a paper that is going to come. So that is one way.
to go about it, to dive into a program. Some programs, let me give you examples. So MyTax. MyTax is a private, GlobalLink is a private organization. GlobalLink has a program called MyTax, and MyTax connects you with professors across Canada. And there are like, I think, thousands of projects that professors have listed online on their website and ask for students. They have funding from AICTE and several other organizations. So you get a very healthy stipend, depending on what kind of funding you have, obviously. And MyTax gives you a stipend. And then if, disregarding COVID right now, you might also get get to travel to Canada, live there. They're gonna completely cover your costs, and it's a very excellent program. And you're gonna learn a lot, and you're gonna learn how it's just the matter of perception. You're gonna see how people are, different. People have different approaches to everything in life, not just to problems, to every answer. They have a different approach. They have a different approach towards research in India and Canada. The professors approach it in a completely different way, and you're gonna like it somewhere. It's completely on to you what kind of what kind of a research thing that you're into, what kind of interaction you like. But you're gonna have a very good experience if you work with a professor, and if you work with a compatible professor, let me put that in quotes. And then when it comes to different NTU programs, NTU lists out a program that it takes admissions 3 times a year. And I think Shubhankar can tell better about it. I've just researched. I never applied to it because I thought I would never get into it, so I just backed off. So and then there are many other programs like Microsoft Research. There's Adobe Research. There's different MNCs that are conducting research interns. So you can apply to them. They have a fixed stipend, fixed time, everything fixed. You're gonna work in a commercial environment. You're gonna tackle a research problem, but gonna work in a commercial environment. And then, okay, now I'm gonna close this program thing, and I'm gonna come to how do you approach professors individually. So it's a very tedious process, let me tell you. You're gonna have to do a lot of stuff. You're gonna have to go through a lot of websites. You're gonna have to go through it's hours and hours of just listing down and knowing what professor you're gonna email to. You're gonna need to have a very good, you're gonna have to have a good resume, okay, very clear to read, and a cover letter. Because let me tell you that if it's not a program, you're applying to the professor individually. The professor doesn't have the time to read crappy things or some kind of bullshit that you've written. He's going to concentrate on your projects. He's going to concentrate on your name. He's going to concentrate on what kind of internships that you've done or publications that you have. That is it. He's not going to concentrate on what kind of courses you've done, what college you're from. He does not care about that. He literally does not care about that. He might ask you later that, oh, you're from a triple IT, not from an IIT. Then you're going to have to explain to him that, okay, so IIT is this and triple IT is this. Because I've been through that. I've explained to my Canadian professor that, okay, so an extra I is actually not making it better. It's making it worse. So I'm just kidding. So I'm just saying that you're gonna have to do a lot of research, a background on the professor, that how that professor is, tackling students. Is he taking interns? Because they have a personal website. What's his email ID? You're gonna have to take out the email ID, the whole background and everything that you're gonna take out. So it's a very tedious process, and you're gonna mail about 300 professors. 30 are maybe even 15 if they reply. That's a big thing. You have a really good cover letter then. And if you can go, you're accepted from like 3 places. Okay, that's a really good turnout ratio. I must tell you, like you're gonna have a turnout ratio of 1/100, but that's a really good turnout ratio if you're accepted in 1 out of 100 places that you email, 100 professors that you email. And there's not going to be a specific time limit. Okay, so from personal experience,
I approached the McMaster University professor. He is not from a computer science background. He is from a physics background. But AI is such an expansive field that everyone is doing it. Every professor is indulging in it. I'm working on a precision medical problem, and so right now I have 4 months for a review paper in which I'm gonna read about 80 to 100 papers, and I'm gonna summarize them into one paper. And I've been through about 54, 55. I think I just read one last night. So it takes a lot of time to read. It's a very tedious task. And it's a very boring task. You're gonna sleep. You're gonna sleep in the middle of the papers definitely, and then you're gonna. But it's worth it, and I'm committed to that professor till next July, till I finish my 4th year. So that's how long he's asked me to work for him for, and we have a good compatibility up till now at least, and we're working fine. We have meetings constantly, and it's a very good environment, and I get to experience every environment of a different university abroad, which I'm actually targeting for MS, and how people think, and how people what are the expectations of every professor there, so that I can prepare myself for what's coming. And I think it is a good experience overall, and you get to learn a magnanimous amount of things, and I don't know how to describe it, but I've had fun, and I've had up and lows about the professors that I've worked with, and it's been a good ride up till now, and I think it's gonna help me. Okay, so yeah, very accurate like representation of how it all goes, because मैं भी अभी लास्ट दिसंबर के अराउंड मैंने प्लान किया था अप्लाई करने का फॉरेन यूनिवर्सिटीज में, डायरेक्ट मेलिंग स्टार्ट की थी, बट वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट फॉरेन प्रोफेसर्स आर नॉट लाइक टेकिंग अप interns right now because of the COVID situation and all, and almost at that time I got this DRDO thing, so I became complacent that I have an internship at hand, so why should I try? But now when I see Shubhankar doing Excel Pat and NVIDIA at the same time, and you in the McMaster and California thing at the same time, then I feel like yes, दो internship भी एक साथ की जा सकती हैं, that should not be a problem. But Secure और Genactis consulting भी है उसका. वही तो यार, मतलब अब मेरे को लग रहा है that was something I felt later on. I realized it later on that I should have been like more focused on this thing, that it is possible to do these things together. I was complacent on this thing. I have no like I won't say no to it, that I won't agree on this thing. हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं. सिर्फ कोविड की वजह से है जो मैं घर पे बैठा हुआ हूँ ना, मैं काम कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, वरना मेरे को, मैं बता रहा हूँ, अगर कॉलेज खुला होता तो आई वुडंट हैव इवन थॉट ऑफ कीपिंग अप विद ऑल ऑफ दिस दैट आई एम डूइंग. See, let's be very honest, कॉलेज की मीट चल रही है, मैं ही होस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे बोलने में कोई वो नहीं है कि मतलब कॉलेज के कामों में कई बार बहुत टाइम एक्स्ट्रा ऐसा जाता है जो मतलब वर्थ हो सकता है कहीं और लगाएं तो. आई नो. सो एनीवेज, और हाँ, इसमें आगे एक ऐसी, अब जो मैं नेक्स्ट चीज पे आ रहा हूँ, क्योंकि अभी भी क्षितिज का थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो क्योंकि जैसे जिस काम में मैं कर रहा हूँ वो भी एक ऐसी चीज है कि उसको बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप, बट एक्चुअली वो भी काफी ज्यादा एकेडमिक है, काफी हेवीली एकेडमिक है. सो क्योंकि शुभांकर के पास जो इंटर्नशिप्स हैं कुछ वो काफी इंडस्ट्रियल उनको हम कह सकते हैं, और क्षितिज का एजुकेशनल वाला है, एकेडमिक वाला. तो उसमें हम पाएंगे कि रिसर्च इंटर्नशिप जो होती है, रिसर्च इंटर्नशिप मैं उसको एकेडमिक बोलता हूँ, मेरी आदत हो गई कुछ टाइम से पहले. तो जो रिसर्च इंटर्नशिप होती है और जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होती है, इस पे तुम दोनों के मैं एक बार व्यूज लूंगा. लाइक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू क्षितिज इज द इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप ऑन वंस प्रोफाइल एंड व्हाट आर इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स comparative to an industrial internship, and what according to Shubhankar would be like his pathway ahead, or like he's forthright, and I hope we can reconcile this thing with Kshitij, like both are we can come on some similar points, but on similar terms. But let's start with the differences first, Kshitij, on research internship versus industrial one. Okay, so and what are the prospects ahead with the research internship for you compared to the industrial one? Okay. So let me just tell about industrial first. So I am
going to finish this, finish the Sekion and the Janactus internship in July and mid-August. And then I have another company that has that I've lined up with from August end. Nay, I think August mid. I don't know the exact date because the offer letter hasn't come yet. But whatever. So that I'm going to work on uh, a commercial project, a project that is going to is for a customer of that company. He wants some kind of a product to be made, and you have a deadline that you need to work on. You have to complete it by then. And okay, so what happens is that when you're in an industrial internship, you're gonna have to report uh, to your seniors constantly, and then you're gonna have to show some progress constantly, and you're gonna have to show some progress everywhere, but you're gonna have to show some progress in terms of you're gonna have to be a little more voluble about what kind of a progress you have, uh, or else they will, they can move forward. They don't have to be stuck up on you. And what happens is after an industrial internship, you get a experience of how commercial or industries work, and how fast moving these things are. The research is not that fast moving, but industrial experiences will be very fast moving. You're gonna have to be very concentrated to work on it, and you're gonna have to burn your eyes out sometimes, but then it's going to be worth it at the end. And if you're applying for industrial internships in the field of data science and ML, you might get into data analytics after your BTech. But what I feel is that you should do an MS or an MTech after you do a BTech, uh, for going into an ML or a research field in a company or any industry or any college or like anywhere. You should have a MS background because that gives you a specialization kind of feeling, and actually a tag of specialization. So you should do an MS if you're indulging in only in a deep learning and AI field. If you're in an SDE field, you should definitely go for a job after BTech. That's going to give you a whole lot of experience. And if it it's just about the industrial experience, the industries give you experience. Okay, so colleges also demand experience sometimes because they take it as a mark that you know something, that you know how these things are done. So they're not going to have to teach you when you join. So they sometimes look for such industrial experience, but not always. If you have a standout background, you don't have to look for industrial experience. You're just gonna get in because they believe you that you're gonna come in and make some change. So, but when you're in a research field, you wanna pursue a research field, that's going to impact your resume in field of publications and projects, because the projects are bigger in a research field. They're more they're going to cover a lot more area. And I must say that in research field you're going to have to do MS later. There's no it is actually one of the benefits. If you're doing research, you can get into MS very easily, because that is the whole thing about an MS, that you're specializing in one thing. And if you've written, if you have publications about it, if you study about something very deeply, which is what you do in a research, you will be a very valuable candidate to that research field and that MS specialization that you're going to do. And after that, you're going to get into some industries research department or something, like you can get into Apple Siri department. And so right. you're going to have. So, but I know a person who's into a Siri department. I think I don't know. Someone told me about this person, and there's one of my relatives is in the Google Brain wala, thing that is going on in India, and he is involved in all this research problems, and he's in the research team. And I just reached out. I've talked to him just once, and he told me that it's a very great experience working with, great minds, because it actually pushes you to actually apply your own mind.
You cannot be, तो you know, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. yeah, you cannot be, you know, you cannot just sit there and listen to everyone and not provide your input. They're gonna look for an input from you, and you Definitely. have to be very active in research. If you are doing a research and it's gonna take time. It's gonna take a lot of time. You're gonna get. The way Shubhankar was using the word LinkedIn in like his previous statements, and the way you used the word MS in your statements, I think उससे ज़्यादा clear कुछ नहीं है इस बात को करने के लिए कि research internships और industrial internships में क्या difference है. But हम उस पे भी आएंगे, and the way we are like in the subtle way that we are heading this discussion into MS and GRE thing, maybe till next year we would have a discussion where we would be telling students that how to approach GRE and MS thing also. I'm just gonna say, I'm just gonna add a couple more points that to whosoever is in this meeting. If you want to do an MS from abroad, don't think of it as some common misconceptions is that it's going to cost a lot of money. You're gonna, you know, नहीं you're भाई gonna बिल्कुल ऐसा नहीं है. you're gonna have to, you know, manage on. You're definitely gonna have to manage on your own. You're doing it on your own. You're 21 years old. You're gonna have to do it now, and you don't have to be scared that it might cause some kind of burden. And one more thing that I want to make you, you know, beware about is that you have to start working from right now. You can't just say that I'm going to enter third year, I'm going to enter 6th sem, I'm going to give GRE and go to MS. No university is going to take you without a good background, a good project background. The whole play like is about the profile here in the MS thing. Profile कैसी है? Build a profile from the first year onwards. I started building it from the second year onwards because I got to know that I want to do MS in second year. So I was a little late. I'm just trying to, like, you know, I'm playing catch up with everything. There are people more late than you. That is why I'm telling them to not be late, dude. If you want to do something, start right now. You just keep your GPA up, keep it above 8, 8.5, and you're gonna be good. भाई सही बता रहा हूँ, लास्ट 2 सेम से और उससे भी पहले से 9 से ऊपर आ रहा है, 8.5 आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड ईयर में इस बारे में नहीं सोचा था ना, उसकी वजह से एक सेमेस्टर में 7.5 है और 7.5 से भी कम था एक में. उसकी वजह से मेरा ओवरऑल जीपी अब तक 9 नहीं टच किया, और 9 होता है तो अच्छा रहता है इस सब चीजों. ब्रो मेरा पहले सेम में 7.8 था, अभी तक मेरा 9 टच नहीं किया है, मेरा 8.5 बकवास. बट कंसिडरिंग कि हम एमएस और जीआरई पे अभी सेशन नहीं कर रहे हैं, तो उन पे हम आएंगे. अभी अपने पास कोई कंक्लूसिव चीज है भी नहीं कि हम इस मतलब क्रेडेंशियल के साथ इन चीजों पे डिस्कस करें. बट यस, हम उस पे आएंगे नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट जब भी कभी कोई सेशन होंगे. शुभांकर इंडस्ट्रियल पे कवर कर लेता. ओके, सो मैं इंडस्ट्रियल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, आई थिंक क्षितिज ने कवर कर लिया है. बट हाँ, बेनिफिट्स जो हैं, अच्छा एक चीज और है, अगर रिसर्च इंटर्नशिप्स जो हैं, दे आर लाइक अ स्नेल इन टर्म्स ऑफ स्पीड, देन वर्किंग इन एमएनसीज इज लाइक ड्राइविंग अ 18-wheel ट्रक. ठीक है, ड्राइविंग इन अ मीडियम साइज कंपनी, इट इज लाइक ड्राइविंग अ रेगुलर ट्रक, एंड ड्राइविंग इन अ स्टार्टअप, इट इज लाइक ड्राइविंग अ रेस कार. तो ये यहाँ पेज का डिफरेंस है. ये चीज एक बहुत ध्यान में रखना. दूसरी चीज यार क्या है कि रिसर्च में इट इज योर रिसर्च एक्यूमेन, और मतलब बहुत आराम से आप कर सकते हो रिलेटिवली. मतलब क्षितिज का ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे ही आप इंडस्ट्री साइड पर आते हैं तो वहां पे आपका जो आंसरेबिलिटी होती है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है. आप यहाँ पे कुछ रिसर्च अगर कर रहे हैं, आप उसमें बहुत टाइम लगा सकते हैं, बट व्हेन इट इज आप कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे आराम वो जल्दी करना है. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हमने आज का विजन लिया है और उसको 2 साल के बाद या 1 साल, इवन 6 महीने के बाद हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लाए, तो तब तक कुछ और कोई और लेकर आ जाएगा, वो फायदा मार जाएगा मार्केट का. या तो कोई लेके आ जाएगा, या फिर तब तक कुछ और नया हो जाएगा बेटर देन योर विजन. सो यू हैव टू बी फास्ट. बिल्कुल. बाकी ये है कि यार यहाँ पर कंप्लीशन नहीं हो सकते, यहाँ पर टाइम टू टाइम डेडलाइन से डेडलाइन काम करना होता है.
ओके और एंड एक अनदर थिंग, हाँ एक इसी रिसर्च आंसर में ऐड में कर दियो, मैं तुझे क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी आंसर में ऐड कर दियो। जो राइट टाइम टू डू इंटर्नशिप की बात है कि कब हमें इंटर्नशिप स्टार्ट कर देनी है, एंड अनदर थिंग अबाउट इट इज दैट व्हेन शुड वन फील दैट ही और शी इज रेडी टू परस्यू एन इंटर्नशिप इन दिस पर्टिकुलर डोमेन एमएल और एआई थिंग, दैट वी शुड फील दैट हाँ हम एमएल और एआई की इंटर्नशिप जो कर रहे हैं हम इसके लिए अब रेडी हो चुके हैं, हम इतने स्किल आ चुके हैं। इस पॉइंट को भी कवर कर लियो साथ में। ओके सो हम्म हाँ, तो एक रिसर्च में ये पाया गया था कि अगर कोई बैड हायर है, ठीक है, ही और शी कैन अफेक्ट अ टीम्स परफॉर्मेंस बाय 46%। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें, और एट द एंड तो फायर वो बंदा हो गई, ठीक है। बेटर है कि अगर कभी भी करोगे, फ्यूचर में इंटर्नशिप करोगे, हमें पीपीओ भी लेना है ना, या जॉब में टिक के रहना है, हमें निकलना नहीं है वहां से। तो उसके लिए काम टाइम टू टाइम करना है। इसके बाद तू क्या बोल रहा था कि व्हेन इज द राइट राइट टाइम टाइम टू टू डू इंटर्नशिप वाली बात, और द व्हेन शुड वन फील कि हाँ मुझे इतना आता है कि अब मैं कुछ करूंगा इस फील्ड में, आंसर टू द फर्स्ट, मतलब आई इंटर्नशिप आंसर द के सेंस सेकंड में वन कुछ फर्स्ट। करूंगा। सो यू हाँ कैन आइदर फील कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, जो भी फील्ड है उसमें मुझे सब आता है। दूसरा आंसर है इसका कि यू आर नेवर रेडी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इतनी नई चीजें होती हैं, और इवन अगर हम इंटरव्यू स्टैंडर्ड्स देखेंगे तो पिछले 3 या 4 साल में इट हैज स्काई रॉकेटेड। अगर आज से 4 साल पहले पूछा जाता था बस ये पूछ लो कि यार एमएल की डेफिनेशन क्या है, ये एल्गोरिथम आती है कि नहीं आती है, उनको ये नहीं मतलब तुमने इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। उसके 1 साल के बाद क्या तुम्हें डीप लर्निंग आती है, क्या तुम्हें लेट से इमेज क्लासिफिकेशन आता है। लेकिन अब उस स्टैंडर्ड पे आ चुके हैं कि जो हॉट टॉपिक्स हैं जहां पर काम चल रहा है, अब वो पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या मुझे कंप्यूटर विजन में इमेज सेगमेंटेशन, जो एडवांस कंप्यूटर विजन है, वो आता है, या फिर अगर मैं एनएलपी की बात करता हूँ, या फिर सीक्वेंस मॉडल्स, सीक्वेंस बेस्ड चीजों की बात करता हूँ, तो क्या वहां मुझे ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी 2 3 बर्ट और ऐसे मॉडल्स के बारे में पता है, क्या मैंने कभी ट्रेन किया है, या फिर आजकल चलते हैं गैंग्स। तो बेसिकली इट इज नॉन ह्यूमन आर्टिस्ट। तो क्या मुझे वो गैंग्स पे मैंने काम किया है, क्या मैंने उस पर कभी काम किया है। ये इतनी सारी चीजें हैं और आजकल ये पूछने लग गए हैं। तो जैसे अगर बहुत सारे लोग डीएसए पे भी फोकस्ड होते हैं ना, तो अगर उसमें भी देखोगे तो विद टाइम डीएसए से लेके, और जैसे कंपाइलर डिजाइन या फिर एचएलडी, लो लेवल डिजाइन, इन सब तक लोग आने लग गए हैं, सिस्टम डिजाइन तक लोग आने लग गए हैं। तो यहाँ भी चीजें धीरे धीरे ऊपर जाएंगी, जा रही हैं और जाएंगी। तो अगर व्हेन इज द राइट टाइम, तो कभी भी अगर मेरे फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है, तो दैट इज द राइट टाइम। अगर मुझे पता है लाइक कि अगर मुझे लग रहा है मैं प्रोजेक्ट्स बना पा रहा हूँ अपने खुद हाँ, से कोई डेटा सेट उठा के, तो अब मुझे ये होना चाहिए कि अब मैं अप्रोच कर सकता हूँ और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐड करके अपनी प्रोफाइल हाँ, में। वो प्रोजेक्ट्स में डॉट फिट और डॉट प्रेडिक्ट नहीं कराना। हम्म ठीक है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारी लाइब्रेरीज हैं, साइकिटलन या पाईटॉर्च या टेंसरफ्लो या केरास जैसी, जिसमें डॉट फिट हम्म कराया, अपना डेटा डाल दिया, मॉडल ट्रेन हो गया, और डॉट प्रेडिक्ट कराया, सारा हमारे पास प्रेडिक्शंस आ गए। तो ये हम्म प्रोजेक्ट नहीं करना है। या फिर ये अगर आता है हम्म तो इसमें भी आप रेडी नहीं हो। स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है, लेकिन व्हेन यू नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड हम्म इट, यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट थिंग्स। मतलब इवन अगर मुझे कोई मशीन लर्निंग मॉडल आर्किटेक्चर बताओ, एल्गोरिदम बताओ, मैं उसको अगर स्क्रैच से हम्म बना सकता हूँ, तो दैट इज द स्टार्टिंग हम्म पॉइंट। यार यहाँ से मैं फील कर सकता हूँ, यहाँ मैं रेडी होना शुरू हूँ। दूसरा ये है कि हम्म क्या होता है कि अगर जैसे कोई जॉब पोस्ट आया या इंटर्नशिप के लिए पोस्ट आया, एंड आप हम्म सोचते हैं यार मैं 2 3 दिन बाद करूंगा, या फिर मैं पहले ना ये प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, मैं ये बना के कर लेता हूँ, नेवर डू दैट। हाँ तब तक वो पोस्ट ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये तो है। अगर तो इंटर्नशिप पोस्ट सामने दिख रहा है देन अप्लाई, होगा नहीं होगा बात की बात है। होगा, अगर हो जाएगा तो देख लेंगे अपना हो एग्जिस्टिंग जाएगा तो वेल प्रोजेक्ट एंड गुड। उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, उससे अच्छा है उससे खराब है, और अगर अप्लाई तो करना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल अप्लाई करते रहो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ा पहले पढ़ लेता हूँ फिर अप्लाई करूंगा, देन इट इज अ बिग। एक दिन की भी देरी आजकल की डेट में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 1000 अगर लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू बी इन दैट टॉप 1000 और द फर्स्ट अर्ली बर्ड टॉप 1000। अच्छा। ठीक है, दूसरी और अब
हाँ पहला continue. क्वेश्चन जो था कि व्हेन टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरा ये है कि अगर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमने थोड़े फंडामेंटल्स बना लिए हैं, थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमने एक या एक से ज्यादा फील्ड्स एक्सप्लोर कर लिए हैं एंड वी नो कि ये जगह है जो मुझे अच्छी लगी, ठीक है, तो उसके बाद उस पर थोड़ा काम करके ट्राई करो, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के बाद से ही शुरू कर दो। मैंने गलती करी थी ये चीज, और मैंने थर्ड सेमेस्टर में अपनी पहली इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी IIIT इलाहाबाद वाली, बता रहा हूँ बस। हाँ हाँ, तो तब तक इवन मुझे याद है तूने सुनाई नहीं दे रहा, ब्रेक। हाँ कंटिन्यू। नहीं मैं कह रहा था मैंने थर्ड सेमेस्टर में करी थी और तब तू बोल रहा था कि अभी नहीं करनी चाहिए, मतलब अभी सही टाइम नहीं है, मुझे तब मेरे की बात तो याद नहीं है। था। हाँ हाँ कोई बात हाँ, नहीं, कंटिन्यू। तो इवन अगर मैं ये बताऊं कि मैंने कब शुरू किया, तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर के मिड में शुरू किया, जब लॉकडाउन लगा था तब हम लोग वहां से आए थे जबलपुर से खेल के, और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया था, और उसके बाद में भी मैंने 1.25 साल काम किया है, तो कहीं जाके मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हुए। अच्छा सो इट इज एक्सटेंसिव, बहुत एक्सटेंसिव। ठीक है। और अब क्यों इसको आज वाले सेशन को हमने बहुत लंबा भी नहीं खींचा, क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस सेशन के स्कोप के बहुत बाहर हैं, तो बस एक लास्ट के 2 पॉइंट्स जिनको मैं इसमें कवर करूंगा। एक ऑल्टरनेटिव टू डीएसए और सीपी वाली बात जो है उस पे एक बार हम आएंगे, और एक और चीज है कि अगर मतलब हमें रीच आउट करना है रेफरल्स के लिए, तो रेफरल वाली चीज पाएंगे। ऑल्दो रेफरल वाली चीज हमने कई बार अलग अलग मतलब दूसरी फील्ड्स के लिए भी कवर की है, जब आदित्य सर के साथ हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक स्कोर का तब भी की थी, और भी जगह की है। एक बार मैं डीएसए और सीपी वाली चीज पे आ जाऊंगा। हालांकि मैं पर्सनली ये कह रहा हूँ कि मैं डीएसए सीपी भी करता रहा। आई वाज 1895 रेटेड एट कोचेफ, 4 स्टार था, एंड सेम टाइम में ये काम भी कर रहा था, मुझे दिक्कत नहीं आई। बट हाँ मैं शुभांकर या क्षितिज से मैं स्टार्ट करूंगा इस पे कि डीएसए सीपी की का एक ऐसे ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और क्या ऐसा भी है कि अगर एक चीज करें तो दूसरी नहीं कर पाएंगे, इस पे कवर कर ले। ओके सो ऐसा नहीं है कि तुम DSCP कर रहे हो तो तुम ये नहीं कर पाओगे। मैंने खुद ने किया था DSCP पिछले साल फॉर इंटर्नशिप के लिए, मतलब लाइक मैंने इससे पहले किया था 2 महीने अच्छे से एक्सटेंसिवली किया था, मैंने कोर्सेज लिए थे स्टफ के, एंड मैंने किया था DSCP, एंड जैसे सुमित 4 स्टार तक पहुंच गया था, मैं भी घिसते घिसाते 3 स्टार तक पहुंचा था, ठीक है। एंड देन बट ये है कि DSCP when you do it extensively for a little while, तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होने लगता है, तुम्हारा पैटर्न एनालिसिस स्ट्रांग होने लगता है। एक्चुअली वही उसका एक्चुअली पर्पस भी है जो अपना मेन काम है। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि सीपी ऐसी चीज है कि अगर मैं कुछ और भी कर रहा हूँ ना, एमएल वगैरह की फील्ड में भी आ गया, किसी भी फील्ड में, तो मैं सीपी हमेशा, क्योंकि मुझे करने की वो हो गई, तो मैं कभी ना कभी टाइम निकाल के करता रहूंगा। हाँ क्षितिज कंटिन्यू। वो लॉजिक वाली बात है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सुमित ने बोला कि वो वही उसके पीछे बेसिस है कि वो लॉजिक बिल्डिंग जो होती है ना, वो जनरली सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स रिलेटेड नहीं होगी, तुम उसको रिसर्च फील्ड में आओगे ना। जैसे मैं जैसे रिसर्च फील्ड में आया, मैं सोचता हूँ कि नाउ आई कैन थिंक रिगार्डिंग व्हाट काइंड ऑफ कोड दैट आई वांट टू डेवलप, तो मेरे को उस कोड में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू लॉजिकली चेंज, और in order to apply some function that will provide me a better output। वो मैंने DSCP से सीखा है। एंड अगर DSC मैंने 11th-12th में भी DSCP किया, बिकॉज वो मैंने कंप्यूटर साइंस ली हुई थी, सो उसमें भी मतलब मेरे को 11th-12th में तो मैंने सीखा, मैंने बहुत टाइम पास किया उसमें। नंबर तेरा ICSE था? नहीं यार, मेरा CBSE। चल बढ़िया, ठीक है, साथ साथ। हाँ बोल आगे। सेम जगह भाई, दोनों दिल्ली के हम। हाँ वो तो मुझे पता है, मुझे लगा कहीं ICSE वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो हाँ भाई, तो मैं ये कहूँगा कि हर फील्ड में DSCP की बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम कहीं भी वहाँ से जाओगे DSCP से, ठीक है, तुम्हारी DSCP वाले जो स्किल्स तुमने अक्वायर करे वो नहीं छूटेंगे। You'll have a better pattern analysis, you'll have a better aptitude, you'll have a better logical reasoning, and तुम analytically चीज़ों को सोचना शुरू करोगे if you do DSCP for a long time, and it helps in research। Do not leave DSCP। मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे पूरे दिन की रोज तुम्हें करना ही है, शेड्यूल बना ले, नहीं, डू इट वंस इन अ व्हाइल। हफ्ते में एक बार कोई तुम्हें प्रॉब्लम आ गई, जस्ट कैजुअली सोते समय स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, स्टार्ट थिंकिंग कि मैं कैसे इसको अप्रोच करूंगा, व्हाट काइंड ऑफ अ ग्राफ, व्हाट काइंड ऑफ
you know what kind of a linked list I'm going to apply in this, what if अगर ये इससे solve होगा, ये tree से solve होगा या फिर ये किससे solve होगा, ठीक है, मतलब उतने basics clear कर लो कि तुम ये सोच पाओ obviously, but then ये हफ्ते में एक आध बार कभी देख लिया एक आध प्रॉब्लम, ठीक है, या दिमाग लगा लिया, प्लस इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स, स्पेशली ज्योमेट्री की, बट मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स लाइक कोई ज्योमेट्री की रैंडम प्रॉब्लम है जिसमें एक स्क्वायर बना दिया, उसमें 3 सर्कल बना दिया और कोई इंटरसेक्शन एरिया है, जो मतलब यूट्यूब पे बहुत प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी तुम्हें ऐसी, जस्ट पॉज द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। मैं ये काफ़ी मैं 2-3 महीने से कर रहा हूँ और मेरे को बहुत मज़ा आता है सब करने में, तो मेरे को मज़ा आता है, तो आई होप कि तुम लोगों को जो देख रहे हो या मतलब जितने भी सुन रहे हैं उन सबको भी आएगा, एंड जो आगे भी देखेंगे अगर रिकॉर्डिंग, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि शायद ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए। And बाकी since I've been a flag bearer of this CP thing from last 1.5 year in the college, so मतलब क्योंकि मैंने अपनी प्रोफाइल में भी इसको बहुत वो किया कि मैंने कैसे इस फील्ड में कॉलेज में काम किया कि कॉलेज में मैं इस कल्चर को प्रमोट करूं, तो मैंने खुद ऐसा अपने साथ जो इंटर्न्स अभी हैं अलग अलग जगह से हैं कोई ना कोई, तो ML नॉलेज अगर सेम भी है तो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया, नॉट टू बोस्ट या मतलब नार्सिसिस्टिक नहीं हो रहा हूँ, बट मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो चीजें होती है ना ऑब्जर्व करने की, जिन लोगों ने बिल्कुल CPDSA नहीं किया और अपने ग्रुप में जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी चीजें करी हैं CP जैसी, वो जल्दी इन चीजों को पकड़ लेते हैं, मतलब सेम ML नॉलेज या डीप लर्निंग की नॉलेज वाले। बिल्कुल। एंड शुभांकर, रेफरल, क्योंकि तूने लिंक्डइन का ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया है, तो एक बार लास्ट रेफरल वाली बात पे। हाँ क्षितिज, तूने जैसे एक जो मैं वही रेफरल वाली चीज पे सो यू सेड कि रेफरल का, सो मैं ये नहीं, पहली बात तो मेरे को ये डाउट है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि रेफरल कौन से रेफरल, लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज के लिए रेफरल्स की बात करें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो कॉलेज से भी उठा लेंगे, या जिनके साथ पहले काम किया उनसे भी हम कह सकते हैं कि LOR मिले। लाइक तू इलाहाबाद में कौन से प्रोफेसर के साथ था, क्या नाम था सर का? आई थिंक तू सेम के अंदर था, अनुपम अग्रवाल। नहीं, अनुपम अग्रवाल सर दूसरे हैं, वो मेरा रूममेट उनके साथ था, मैं GS तिवारी सर के साथ था। ठीक है, हाँ, तो हम उनके थ्रू, तो उन्होंने हमें तब भी कहा था कि अगर आगे ऐसी जरूरतें पड़ती है तो वो होगा, तो वो एक चीज है। हम रेफरल्स की हैं, इंडस्ट्रियल वालों की बात कर रहे हैं। ओके Okay. अच्छा, I'm sorry to interrupt, but I think I would have to go in the next 5 minutes, so I'm just going to conclude by saying that कि जो भी research की field है, it is the genesis of every other problem that you see, every other commercialization that you see. You see Siri, you see every big thing, Google, every new idea has its genesis from research. Okay, I'm not here to promote research, obviously, but I'm just going to say that in a subtle way we are already doing that in the whole session. Kshitij, मैं बता दूं, किया है हमने पूरे सेशन में, आज के में 1 घंटे हमने यही बात बोली है कि but yeah, it provides a beginning point to every problem, every product that you see around you, and जैसे मैंने examples दिया, okay, like आजकल क्या क्या मार्केट में बहुत अच्छा, मार्केट में मैं बोल रहा हूँ like बहुत वो है, फेमस है अभी, so right, stock predictions, ठीक है, companies are employing people for stock prediction models and AI models based on stock predictions, and such predictions are going online and offline for this stock prediction things that you can't imagine how much they're paying for this. It is just too much. And then after that, I obviously told you about this AlphaFold thing, the DNA sequencing thing. So it's becoming a really huge thing in neurosciences, and it's becoming a very huge thing in, I'm just going to give you examples like, self-driven cars. Elon Musk is working on that, and like million other people are working on it, but like I'm just going to give you a familiar face that's working on it. So, and after that, a precision medicine problem that I am working on, and it is a very booming problem right now. Precision medicine is basically automating any kind of precision medicine is basically automating what kind of medicinal needs or what kind of treatment a person should be provided during his
any chronic disease or disease that he has. And you're going to automate all that so that people are less bothered, doctors are less bothered. Might take away some of their jobs, but well, we're going to do our work. And चलता है डेवलपमेंट के नाम पे इतना behavioral analysis and like cameras install हो रहे हैं all over India जिसमें behavior analysis हो रहा है. I read this South Korea में they've employed this cameras में they've employed this AI system where they're trying to detect a possible suicide. So every possible suicide point they've installed cameras. They're detecting behavior of people from different locations, and they're trying to predict if a person is suicidal or not. And they're gonna be vigilant about the AI is going to be vigilant about it and going to warn them if this person is acting suspicious and might commit suicide. And that is a very great initiative to save someone's life, I think. ब्रेकअप के बाद नहीं घूमना चाहिए मतलब वहाँ की ब्रिजेस पर. It's very clear. Exactly. And मतलब मैं बस तो एक से लास्ट बस कि बिल्कुल जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, तुम जब कोई भी ML या फिर DL की चीज में कर रहे होते हो कि तुम अपने आप को एब्सटेन करते हो, ठीक है. यूर लाइक तुम पहले सोच लेते हो कि ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है. I'm just going to tell you that get your hands on the keyboard and the mouse, start typing, start copying, whatever you're doing, ठीक है. Start Stack Overflowing. You're going to learn so much. You're going to create something if you're going to type and you're going to do something about it, or else you're not going to be able to. So तुम्हें ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्पेशलिस्ट बनना रिक्विजिट है कि एक अच्छा मॉडल बनाने के लिए. नहीं, तुमसे बन सकता है, गलती से भी बन सकता है, ठीक है. एंड बस तुम्हें ये है कि तुम्हें हैंड्स ऑन कंप्लीटली करना पड़ेगा. तुम्हें you have to start off somewhere, वो वाली बात है. You have to start coding. You don't have to abstain yourself कि I like this field but wait, I don't know enough about this field. ऐसा नहीं, ठीक है. You just start working in this field. You're gonna know. करने से होता है. So that's all. Yeah, right. एंड शुभांकर अगर लिंक्डइन रेफरल वाली चीज पे तो कुछ नया ऐड कर रहा है, कुछ और बता रहा है, देन वी कैन हैव इट. और हम बस ये बोल देते हैं कि कोई क्वेश्चंस होंगे तो आ जाएंगे एंड वी कैन एंड. अभी बहुत कुछ रेफरल में कुछ नया बता रहे तो बता दे. तो रेफरल के लिए एक जो चीज है ना कि मतलब आप लोगों को मैसेजेस करते हो या कोल्ड ईमेल करते हो, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको पॉजिटिवली या न्यूट्रली रिस्पॉन्ड करते हैं. बहुत कम लोग होते हैं जो कि नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं. एक बारी एक कंपनी है शॉपिफाई, तो वो हर साल डेटा साइंटिस्ट या डेटा साइंस इंटर्न्स 5 तरीके के इंटर्न्स को हायर करते हैं. तो मैंने पिछली बारी भरा था उनका. समझ तूने कैमरा ऑफ किया, ठीक. तो मैंने उनका भरा था और उनके एक एम्प्लॉय को मैंने रेफरल के लिए रीच आउट किया था. मेरा वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. उसके कारण क्या हुआ, मैंने फिर रेफरल के लिए लोगों को रीच आउट करना ही बंद कर दिया और उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा था वो दूसरी कंपनियों में जहां मैं अप्लाई कर रहा था उस पे था. तो एक दो ब्लैक शीप जरूर होते हैं, सारे ब्लैक शीप नहीं होते. और मतलब कब पता चलेगा कि हमें रेफरल चाहिए या फिर रेफरल के लिए हम तैयार हैं, हम मांगने के लिए तैयार हैं. उसका एक तरीका है, बिल्ड योर रिज्यूम. मैं अपना दिखा देता हूँ. लाइक खुद ही पता लगने लगता है कि हाँ मैंने कुछ लिख रखा है, मुझे कुछ आता है और मैं कर सकता हूँ. मतलब जब लगेगा ना कि यार मुझे कोर्सेरा के यूडेमी के कोर्सेज इसमें ऐड करने के लिए मेरे पास जगह नहीं, ठीक है. तो जब मुझे पता बिल्कुल कलरफुल नहीं है पर भसड़ मची हुई लिखा हुआ है, बहुत कुछ पता चल रहा है. हाँ, जब मेरे पास वो जगह नहीं होगी, जब मेरे पास पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी लिखने की जगह नहीं होगी, तो समझ जाना कि प्लस तो कर जूम इन. यस. हाँ, और उसके बाद बोलते रहे. उस मोमेंट पे पता चल जाएगा यार कि हाँ अब डेफिनेटली मैं जब रीच आउट करूंगा ना तब कोई मुझे मना नहीं करेगा, या फिर बहुत कम लोग होंगे जो मना करें. और मैं मेरे साथ क्या होता है, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर देता हूँ कि मुझे इवन इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हुए थे अप्रैल 29 से. उससे पहले एक इंटरव्यू नहीं दिया था. अप्रैल 29 को एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, उसका मैंने इंटरव्यू दिया था.
उसके बाद में एक मेरा बहुत गंदा इंटरव्यू दिया, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा कोई रोड मैप नहीं फॉलो किया था, बहुत रैंडम फॉलो। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू गंदा गया ड्यू टू स्टैटिस्टिक्स। फिर मैंने वो पढ़ा, एक मुझे इंटर्नशिप मिली थी स्पाइस मनी, तो वहाँ वो एक अच्छी इंटर्नशिप थी, लेकिन क्या Hello, हुआ कुछ। हाँ भाई। Shubhankar. I'm sorry to interrupt, but Sumit, I'm gonna have to drop off. I need to go somewhere, and it's currently urgent. So uh, I think this has been a great session. Thank you. Thank you for the inputs, valuable inputs. Thank you, हम man. भी Thank ऑलमोस्ट एंड ही कर रहे हैं। you. Yeah, चल sure. ठीक है भाई, हाँ, Good बाय। luck. Thank you. तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ मेरे साथ कि वो जो स्पाइस मनी वाली इंटर्नशिप थी वो रिवोक हो, और विद इन अ अच्छा। वीक मेरे हाथ में दूसरी थी। ठीक क्योंकि है, तू लगातार अप्लाई कर रहा था, मैं वो और वाली ये बात वो है। पीरियड था जहां पर मैं 2 बार सस्पेंड हुआ था लिंक्डइन से। बहुत बढ़िया। और ये जैसे तो कहते तू हैं, रिज्यूम में लिख ले अपने अचीवमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार क्या होता है ना, जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि कनेक्शन बनाओ, मतलब लिंक्डइन से बाहर भी कनेक्शन बनाओ, उसका भी बहुत फायदा होता है। जब हम जबलपुर गए थे और मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो वहां पे जबलपुर की जो टीम है उसमें एक थे ओजस्वी माथुर, तो उनके साथ मेरी थोड़ी मित्रता हो गई। तो मैंने पिछले साल उनसे पूछा था सर कि मुझे ये नहीं पता डेटा साइंस के जो इंटरव्यू या जॉब इंटरव्यूज होते हैं, जॉब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो कैसे होता है, उसमें क्या होता है। एसडी का तो हमें पता है, एक टेस्ट कोडिंग टेस्ट हो जाता है, या उससे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में टेक्निकल इंटरव्यूज, एचआर इंटरव्यूज, जॉब या इंटर्नशिप। सही यहाँ है। क्या होता है, तो इस बहाने से, नॉट बहाना, कि ये पूछने के लिए उन्होंने अपने एक फ्रेंड का बताया था मुझे। उनका नाम आशुतोष विश्नोई है और वो एक्सेल पैट लैब्स में ही काम करते हैं। अभी जब मेरी इंटर्नशिप रिवोक हुई थी, मैंने उनको कांटेक्ट किया कि सर मुझे इंटर्नशिप चाहिए, कुछ आप बताओ अगर आपके कहीं सर्कल में किसी को जरूरत हो तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, 6 महीने की इंटर्नशिप आ जाओ। और उसके बाद आई थिंक एक सही दिन है। 2 दिन के अंदर इंटरव्यू हो गया। और उस और मतलब ऐसा हुआ है कि, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, अगर अप्रैल 29 तो बहुत ऑफर्स मिले, बहुत सारे इंटरव्यू कॉल आने शुरू हुए। काफी अभी हद तक पॉइंट तो क्लियर है शुभंकर। हाँ हाँ, हाँ तो क्योंकि मुझे लग रहा है 6:30 होने वाले हैं, क्षितिज भी अब लीव कर गया आराम है, से तो ब्रो, आराम से आराम से। हाँ अभी तो चीजें बची हुई, बोल। हाँ ठीक है। ठीक है। तो क्या है कि यही करते जाओ जो मैंने बोला है कि, अच्छा एनवीडिया वाला जो है ना, ऐसे ही मैंने किसी लिंक्डइन पोस्ट पे किसी ने शेयर किया हुआ था, मैंने उसमें अप्लाई किया, मुझे ईमेल आ गया। और एनवीडिया वाले में भी मजेदार चीज ये हुई, मेरा जब इंटरव्यू होना था ना, उसके 1 हफ्ते के बाद हुआ। मेरा इंटरव्यू और वैक्सीन सही है। लगवाने गया और वहां पर उसकी तबीयत खराब हो गई। ओके। हाँ, तो मतलब, और अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की बात करी जाए, तो यार बेसिक ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे जैसे बड़ी कंपनियों की तरफ जाओगे, आपको ग्रिल भी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दे विल एक्सपेक्ट यू नो एवरीथिंग। मतलब उनको जो चाहिए दे विल आस्क। और जैसे मेरे 2 इंटरव्यू, तो दोनों से पहले मुझे बताया यार ये पढ़ के आओ, फिर अगला इंटरव्यू कर। ठीक है। राइट। और हाँ, जो ऑल्टरनेट चीज कही थी डीएसए और सीबी के बारे में, तो क्या होता है कि ऑल्टरनेटिव्स टू डीएसए एंड सीबी। हाँ, तो क्या होता है कि अगर एक्चुअली मैंने खुद ने कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर हम जॉब्स को या रोल्स को कैटेगराइज करने जाएंगे तो 4 तरीके के कैटेगराइजेशन। वन इज आर एसडी, जिसमें फ्रंट एंड, फुल स्टैक, बैक एंड, एंड्रॉइड, ये सारा आ जाता है, या सिस्टम्स इंजीनियर्स, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, ये सारे आ जाते हैं। एक होता है हमारा डेटा साइंस एआई आ गया, एक यूआई यूएक्स है, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या प्रोडक्ट मैनेजमेंट है। तो काफी सारी कंपनीज हैं, लाइक अडोबी है, लिफ्ट है, उबर है, गूगल है, और बहुत कंपनीज हैं जो कि ये बाकी सारे रोल्स भी देते हैं, और वो भी बैचलर्स वाले। बेसिकली इंडिया में क्या होता है, 5 से 7 साल का टाइम लगता है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एन एसडीई टू बिकमिंग प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर। तो यहाँ से अगर आप स्टार्टिंग ही यहाँ से कर रहे हो तो दैट इज एन एडेड थिंग। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है
कि यार ये भी रोल्स हैं, यहाँ पर डीएसए सीपी कम यूज होता है। जैसे मेरा पर्सनल ये है, मैं डीएसए या सीपी में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, या फिर मुझे उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, सो आई कैन लुक फॉर ऑल्टरनेट रोल्स। और रिसर्च इंटर्नशिप, और इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ। लोग सोचते हैं, बहुत एक ये रूमर है या मिसकंसेप्शन बहुत लोगों में होता है कि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स आर गुड बिकॉज दे ऑफर अ पीपीओ अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो मेरे जो अभी करंट जिनके अंडर में मैं एनवीडिया में काम कर रहा हूँ, उन्होंने एक इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप नहीं की, 4 साल लगातार सिर्फ रिसर्च इंटर्नशिप करी है, और वो एनवीडिया में। थैंक यू, तूने मुझे काफी एनकरेज किया इस बात से। ठीक है। बाकियों का पता नहीं। और क्या होता है कि इवन जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी आईआईटी जोधपुर में, तो मैं उससे पहले यही सोचता रहता था कि यार अभी तो मेरा वो लेवल नहीं आया है, अभी मेरा वो लेवल नहीं आया है। लेकिन जब आप रीच आउट करना शुरू करते हो ना, आपको पता चलता है आपके साथ और भी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका भी वो लेवल नहीं है। अगर मैं एक कैगल के ग्रैंड मास्टर को देख के सोचता हूँ, कैगल एक डेटा साइंटिस्ट की सबसे बड़ी कम्युनिटी, तो कैगल के ग्रैंड मास्टर को मैं देख के सोचता हूँ कि यार मेरा वो लेवल नहीं है, तो वो लेवल मेरा जिंदगी भर नहीं होगा। एट सम पॉइंट वी हैव टू स्टार्ट। और इंटर्नशिप करो, प्रोजेक्ट बनाओ, ये बहुत ऐड करता है रिज्यूमे। चाहे मैं अगर 4 जगह आज भी अगर चाहूँ ना, मैं यही चाहूंगा कि मैं रिसर्च इंटर्नशिप करूँ, क्योंकि वहाँ एक अलग लेवल पे कुछ मिलता है जो कि शायद मुझे कहीं इंडस्ट्री में नहीं मिल पाए। राइट, हाँ, सही है। ठीक है। कोई और क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो आप ले लें क्या इस बारे में? लेना शुरू कर दो। अगर कोई है किसी के तो पूछ सकता है, मेरे ख्याल से। और एक स्टेटमेंट और है। मेरी तरफ से तो क्योंकि और कोई क्वेश्चन है नहीं जो मैं इस सेशन में और पुट अप करूं। हाँ। हाँ, one does not need to be an expert or a specialist in a field before he or she starts applying. So apply करते राइट, जाओ, कहीं ना कुछ गिर पड़ के मिल जाए। राइट, ऑल राइट। तो अगर इस पॉइंट से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पुट अप कर सकता है, वरना हम इसको रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूं मैं और मीटिंग को भी एंड करूंगा उसके बाद। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है शुभांकर से, क्योंकि क्षितिज तो ऑलरेडी लीव कर गया है। बिल्कुल पूछ सकते हो, बाद में भी रीच आउट कर सकते हो। मेरी कम्युनिकेशन डिटेल्स तू पचोरी चैट में डाल सकता है। एक और चीज अच्छा मैं अरे बताना यार, भूल गया। लिंक्डइन पे कोई भी ढूंढ सकता है तुझे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोडिंग कल्चर पे तू रोज मैसेज करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। एक चीज और भी है, हम्म। एक चीज शेयर करनी है मुझे, एंड इट इज अ रोड मैप दैट आई मेड फॉर डेटा साइंस एंड एआई। ठीक है, कर दे। क्या होता है कि जैसे मैंने लिंक्डइन के उस पर बताया था, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, कि भाई पहले लीनियर अलजेब्रा पढ़ लो, फिर मशीन लर्निंग पढ़ लो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, या कैलकुलस पढ़ लो। तो यार वो चीजें उतनी हेल्पफुल नहीं होती हैं, मेरे पर्सपेक्टिव में तो मेरे साथ नहीं रहा है। तो मैंने एक रोड मैप बनाया था कि यहाँ से स्टार्ट करो, कुछ कोर्सेज हैं वो करो, एग्जैक्ट स्किल्स यहाँ से सीखो, तो ये इजी रहता है और ये थोड़ा फास्ट रहता है। ठीक है, तो ये भी मैं हम लोग शेयर कर देंगे इसमें। डीप लर्निंग पे भी है इसमें, और जो क्लासिकल मशीन लर्निंग है उस पे भी है। और जैसे कुछ यार लोग हैं, तो उनका जैसे एंड्रू एनजी है, या कृष्ण नायक है, अभिषेक ठाकुर है, इन लोगों को डेफिनेटली फॉलो करो। और इवन अगर कोई इस वाली साइड आ रहा है, सो कैगल इज अ बूम। ठीक है, कैगल पे बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ अच्छी चीजें डालते हैं, नोटबुक्स में देख सकते हो। काफी अच्छी नोटबुक्स मिल जाती हैं यहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली इसको ट्राई आउट करो। और बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, एक ही दौड़ में लगे रहते हैं कि भैया डीएसए सीपी करना है और उससे सब कुछ मिल जाएगा। बहुत हद तक वो ट्रू है, बट ये चीजें भी ट्राई कर सकते हो। और एक चीज और है, बहुत लोग क्या कहते हैं कि यार एक्सप्लोर करो। म्यूट है कुछ। तो बहुत लोग कहते हैं कि एक्सप्लोर करो, बट एक्सप्लोर क्या करना है? एक्सप्लोर हमें ये नहीं करना कि हम इंजीनियरिंग में आए, हम फोटोग्राफी एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीजें अपनी अलग है। लेकिन एक्सप्लोर द फील्ड्स, एक्सप्लोर करो एमएल को, एक्सप्लोर करो एआई को, एक्सप्लोर करो डेटा साइंस को, एक्सप्लोर करो फ्रंट एंड बैक एंड जो भी वेब डेव लग रहा है।